निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। Namaskar. Myself Dr. Varalakshmi Indrakanti. I am here with another topic from Pedagogy of Teaching English SECM 02 Block 3 Approaches and Methods of Teaching English. Today we will be discussing Unit 2 and the topic is Task-Based Approach to Cooperative Learning. First, we would like to know what are the learning outcomes of this lecture. After learning this topic, students will be able to know what is cooperative learning. Students will be able to know the importance of cooperative learning, and students will be able to know how and where to use cooperative learning. Then next is students will be able to know how does cooperative learning differ from traditional approaches. Then next is students will be able to know what are the elements of cooperative learning. Then they will know what are the benefits of cooperative learning, and they will be able to know what are the criticism against cooperative learning. So now we will be talking about task-based approach cooperative learning. First, we would like to discuss what is task-based learning, that is called as TBL, is all about students creating, producing or designing something in class. It could be anything. TBL includes the 4 C's. First is the skill of communication, second is collaboration, third is creativity, and fourth is critical thinking. So students has to remember always these 4 C. Next is linguistic scholars define task-based learning as. Now we will be talking about what is task-based learning. So things people do in everyday life, whatever we do in everyday life is part of task-based. Then second is a goal-oriented activity showing results. So goal-oriented activity is very important when we talk of task-based learning. And a third one is a completed work plan which can be assessed. ऐसा प्लान जिसको कि आप बाद में इवैल्यूएट करके एसेस करना चाहते हैं तो उसको आसानी से एसेस कर सकें. This is what task-based learning is. Then we will be talking about what is cooperative learning. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं इसका मतलब है कि हम सब मिलजुल कर सीखने की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं. So that is why students work together in small groups and learn through interaction with each other while the teacher coaches the process. आजकल की शिक्षा पद्धति में आप ये देखेंगे कि टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को फीडबैक देता है और पूरे टाइम स्पून फीडिंग की तरह हर एक माइन्यूट बात उनको समझाता नहीं है. सो व्हेन वी आर विथ पीयर्स वी लर्न फास्टर. और कई रिसर्चेस के माध्यम से भी यह बात साबित हो चुकी है कि स्टूडेंट्स जब अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहते हैं तो वह तेजी से सीखते हैं. सो बेसिकली cooperative learning is something like teamwork only. Then we will be discussing few points today, and those points of discussion are what is cooperative learning, the importance of cooperative learning, why use cooperative learning, how does cooperative learning differ from the traditional approaches, elements of cooperative learning, the benefits of cooperative learning, and the last one is criticism against the cooperative learning. So first we will be talking about what is cooperative learning. नाम से तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड टीचिंग स्टूडेंट्स टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स.
सो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि यदि आप कोऑपरेटिव लर्निंग को कक्षा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्रुप को छोटा बनाएं। छोटा मतलब 6, 8, 10, इससे ज्यादा होंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है, गाइडेड बाय अ टीचर द एम इज टू अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल। निश्चित रूप से जब 6, 8, 10 बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं तो उन सबका कॉमन गोल होगा। एंड वन पॉइंट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर कोऑपरेटिव लर्निंग इज यूज्ड इन द क्लासरूम इट इज गाइडेड बाय द टीचर। तो इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग में कक्षा में शिक्षक का होना अति आवश्यक होता है। देन बेटर पुट इट इन अनदर वे, cooperative learning is when students work together on a course, assignment or project. That is why it is said that the goal should be common for each group members. Then cooperative learning is a group activity. So definitely we must have already understood that cooperative learning means working in a group and cooperating with one another. So learning is dependent on the socially structured exchange of information between the learners in group. Exchange of information, जब 6 से 8 या 10 बच्चे एक साथ काम करते हैं तो वह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिससे उनकी लर्निंग में थोड़ी सी तेजी आती है। एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट cooperative learning is a teaching strategy where students in small groups of different level of ability. इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उन सभी छात्रों की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज होती हैं वह समान होंगी। नहीं, ये ग्रुप हमेशा हेट्रोजेनियस होता है जिसमें विभिन्न तरह की कैपेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। In another words, you can also say that cooperative learning is a teaching strategy with students in small groups of different level of ability. The learners use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject. This helps the students not only learn but help the teammates learn. इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे डिफिकल्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सीखते ही हैं, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से बच्चा ग्रुप में टीम के रूप में एक साथ काम करने की क्षमता का विकास कर सकता है। एंड स्टूडेंट्स वर्क थ्रू द असाइनमेंट until all group members successfully achieve their goals. कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और हर बच्चे का जब तक कि असाइनमेंट पूरा नहीं होता है तब तक सभी बच्चे एक साथ उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भाग लेते हैं। सो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या हुई, स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर ऑन अ लैब और फील्ड प्रोजेक्ट्स। सो आप लैब में भी काम कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं, या फिर कक्षा के बाहर सीखने वाली प्रक्रिया में भी आप टीम वर्क का प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। Then basically what does it require? Basically it requires teachers to structure cooperative interdependence among students. So टीचर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक ग्रुप में छात्रों का चुनाव करते हैं तो किस आधार पर करेंगे, क्योंकि उद्देश्य उस ग्रुप का एक ही है। सो इंटरडिपेंडेंस जब होगी, अंतः संबंध उनके बीच में होगा, तो उनके कॉमन गोल्स का होना अत्यंत आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ आप देखोगे इट इन्वॉल्व्स की एलिमेंट्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वेराइटी ऑफ वेज। तो की एलिमेंट सेम है परंतु उनको विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए यह शिक्षक ही उनको मार्गदर्शन देता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप्स appropriate for different situation and students. So कहने का मतलब क्या है कि कई तरह के ग्रुप हो सकते हैं और हर एक ग्रुप का उद्देश्य भी अलग अलग हो सकता है, और बेसिक उद्देश्य इन सब के पीछे यह होता है कि बच्चे एक साथ मिलजुल कर काम करें जिससे कि वे जल्दी और बहुत अच्छे से सीखें। Now we will be talking about the second point, that is importance and benefits of cooperative learning.
सो कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से छात्र बहुत तेजी से सीखता है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं. सो बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न the workplace skills which are necessity in the 21st century, as the students need to know how to work in groups. ऐसा कि स्पेंसर कैगन ने कहा है. कहने का मतलब क्या है, 21st सेंचुरी में इंडिविजुअली आप काम करेंगे तो उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टीच द लर्नर हाउ टू वर्क इन टीम और इन अ ग्रुप. यही बात जो है स्पेंसर जी ने कही है. देन द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड वेराइड ग्रुप इंफॉर्मेशन. जैसा कि पहले कहा है कि ग्रुप में सभी मेंबर तरह तरह के होते हैं, सो बच्चे उन सब के साथ काम करना सीख जाते हैं. दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप्स कोलैबोरेटिव स्किल्स, कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स, जैसे कि लिसनिंग एंड रेजोल्यूशन स्किल्स. सो जब बच्चा एक साथ काम करता है तो उसमें सामाजिक कौशल का विकास होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, और यदि आपस में उनमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी होता है सो वो भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के माध्यम से अपने उस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वन इज टीचर्स इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप प्रोसेसिंग. जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से ग्रुप में काम करते हैं सो आपको हर व्यक्ति को तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी हर व्यक्ति उस ग्रुप का अपने काम के लिए जिम्मेदार होगा और हर व्यक्ति को उस ग्रुप के अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को अपना ग्रुप में पार्टिसिपेशन 100% देना होता है. सो डेफिनेटली when you work in cooperative learning environment, what it will result? It will promote the interaction, positive interdependence and useful in conflict management. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो विचारों में जब मतभेद होता है so there is all possibility that there will be some conflict. So when you work in group through cooperative learning, you learn how to resolve your conflicts. So ये क्षमता का भी विकास हमको, जैसा कि सोशल स्किल के बारे में हमने पहले भी बात की थी, so उसके माध्यम से आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता का विकास करते हैं. Then next comes the maximum use of cooperative activities in pairs and small groups of learners. So आप 10 का ग्रुप है तो दो बच्चों को पहले एक स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी में आप दे सकते हैं और फिर बाद में जो है दो ग्रुप में करने के बाद वो 10 एक साथ काम करेंगे. तो इसमें क्या होता है, दो के पेयर में भी आप काम कर सकते हैं और 10 बच्चों के साथ भी आप काम कर सकते हैं, जिससे आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरडिपेंडेंस जो है तेजी से बढ़ने लगती है. देन a teacher has to plan a group activity before assigning any type of work to the students. कहने का तात्पर्य क्या है, जब टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लास में लागू करना चाहता है तो उसके पहले कौन कौन सी ग्रुप एक्टिविटी छात्रों को दी जाएगी, इसके बारे में हमेशा उसको पूर्व जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है. बिकॉज प्लान्ड ग्रुप एक्टिविटीज इंस्पायर्स स्टूडेंट्स इंटरैक्शन एंड फैसिलिटेट their contribution to each other's learning. फैसिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है, हर बच्चा दूसरे की सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अपने इनपुट्स देता है. तभी जो है ग्रुप लर्निंग में क्या होता है, यदि कोई बच्चा उसकी फास्ट उतनी लर्निंग नहीं है और उसका पेयर में जो है वो काफ़ी तेजी से लर्न करता है, सो बच्चा जो है जो स्लो वो लर्न करता है वह भी जो है अपने साथी के साथ मिलकर अपनी कैपेबिलिटीज़ को और लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने की क्षमता का विकास वह धीरे धीरे करने लगता है. इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कोऑपरेटिव लर्निंग का. फिर कुछ और हम इस बारे में बात करेंगे कि जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि इट एंश्योर्स लर्निंग एंड मेमोरी बाय अटेंशन थ्रू एक्टिव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन. जब बच्चा उसी काम को ग्रुप में करता है, खास तौर से हर बच्चा जो होता है इस ग्रुप में 8, 9 या 10 में हर एक में लीडरशिप क्वालिटी का विकास होता है. और जब ये बच्चा जानता है कि हम ग्रुप एक्टिविटी के लिए
रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हर बच्चा 100% अटेंशन अपनी देने की कोशिश करता है। इसके वजह से क्या होता है, एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम मॉडलिंग और थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। सो एक बच्चा मॉडलिंग भी करता है और इसके साथ साथ दूसरे बच्चों के काम को देखकर ऑब्जर्व करके भी बच्चा तेजी से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करता है। देन स्टूडेंट्स शो हायर एकेडमिक अचीवमेंट। हमारी कई रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग को कक्षा में यूज करते हैं तो बच्चे को उससे काफी एकेडमिक अचीवमेंट्स में उसकी इंक्रीज पाया गया है। नेक्स्ट इज एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन थ्रू एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स, डिजायर टू अवॉइड पॉसिबल पनिशमेंट्स। जब बच्चा एक दूसरे के साथ काम करता है, ग्रुप में काम करता है, जब 3, 4, 5, 6 ग्रुप काम करते हैं तो हर ग्रुप का बच्चा ये चाहता है कि मेरा ग्रुप टॉप में रहे। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि जब कंपटीशन एक हेल्दी एनवायरनमेंट में होता है तो हर ग्रुप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो इसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ना कि किसी भी तरह के पनिशमेंट की उसमें संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से होता है, जिसको हम कई बार पिछले स्लाइड्स में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी। इंटरपर्सनल का मतलब अंतः संबंध, उसी ग्रुप के सदस्य एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल उनकी क्लोजनेस हो जाती है। और जब साथ में काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि संघर्ष की स्थिति आती है, परंतु अपने ग्रुप को सबसे बेस्ट साबित करने के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करना है, ये कैपेबिलिटीज भी उनमें डेवलप होने लगती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लर्न पेशेंस, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपको बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है, क्योंकि आप वहां पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। साथ में काम करेंगे तो आप सहयोग की भावना या कोऑपरेशन ऑटोमेटिक शेयर करने लगोगे। और इसके साथ साथ जब ग्रुप मेंबर्स, हर व्यक्ति अपने ग्रुप की अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, तो वो एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को शेयर करने के लिए तैयार रहता है। सो इसमें हम देखेंगे कि फिगर के माध्यम से हम यही बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से स्टूडेंट्स किस तरह से बेनिफिट होते हैं। सो आपने देखा ही होगा कि इसमें लिखा हुआ है इम्प्रूव सोशल स्किल्स हो गया, बूस्ट मोटिवेशन है, क्रिएट अ गुड वाइब्स होता है, प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस बताया है, एनकरेजेस अकाउंटेबिलिटी। सो ऐसे कई बातें जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। देन व्हाई यूज कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों यूज किया जाना चाहिए? क्योंकि सबसे पहली बात उसमें है कि रेज अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे का अचीवमेंट इसमें काम करने से बढ़ जाता है। दूसरा है बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स। नेचुरली बच्चा सब एक साथ काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की क्षमता आ जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, एक दूसरे के विचारों को समझने और आदर करने की क्षमता का विकास हो जाता है। सो आप देखेंगे डेफिनेटली उस ग्रुप में पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है। देन इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ लर्निंग कम्युनिटी दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी। जैसा कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि कोई भी ग्रुप एक जैसा नहीं होता है, हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, डाइवर्सिटी होती है। तो बच्चा इस बात को सीखने लगता है कि इस डाइवर्स कम्युनिटी में, जहाँ हर एक बच्चे के विचार अलग अलग हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है, इस क्षमता का विकास छात्रों में होने लगता है। देन इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप बोथ गुड लर्निंग स्किल एंड सोशल स्किल्स। कि जब स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करना शुरू कर देते हैं, सो उनको गुड लर्निंग स्किल्स आती हैं और इसके साथ साथ वो सोशल स्किल्स में भी अपने आप को पारंगत महसूस करने लगता है। और जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, सोशल स्किल्स का मतलब समाज में आप दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स डेवलप द स्किल्स टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर एनी वन पर्सन टू डू।
यदि एक व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को करता है तो वह कार्य उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, परंतु कोऑपरेटिव लर्निंग में जब आप बच्चा मिलजुल कर काम करते हैं सो वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को भी बहुत आसानी से हल करने की क्षमता का विकास कर लेते हैं, क्योंकि वो डाइवर्स ग्रुप होने की वजह से किसी न किसी बच्चे में उस स्किल को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को, उस जटिल समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास करने की भावना उनमें जो है जागृत हो जाती है। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट द आउटकम्स लिंक्ड टू एक्सीलेंस। जब बच्चा एक साथ काम करना शुरू करता है तो वह अपने काम की इवैल्यूएशन करने की क्षमता का भी विकास कर सकता है, और जब बच्चा समय समय पर जब अपने काम का मूल्यांकन करता रहता है तो हर बार वो पिछले मूल्यांकन से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता रहता है। देन आता है हाउ डज कोऑपरेटिव लर्निंग डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोचेस। कहने का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग पिछले कुछ वर्षों में ही टीचिंग में जो है उसका प्रयोग होने लगा है, और ट्रेडिशनल अप्रोच से ये थोड़ा सा भिन्न है। खास तौर से आप देखोगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में टीचर ही कक्षा में लगातार बोलता रहता था, ब्लैक बोर्ड टीचिंग होती थी कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, एक्सप्लेन करता था और स्टूडेंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते थे। पर आज की क्लास में जब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर दोनों के बीच में लगातार जब तक संवाद स्थापित नहीं होगा बच्चों की लर्निंग नहीं होगी। इसलिए ट्रेडिशनल लर्निंग से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भिन्न इसलिए हो जाता है कि इन ट्रेडिशनल लर्निंग द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, है ना। टीचर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि छात्र लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, whereas in cooperative learning students take their own responsibility of learning. So in cooperative learning the teacher encourages the learner to think and involve in educational tasks. So टीचर उनको मोटिवेटर के रूप में काम करता है और ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर द्वारा दिए गए टास्क को अच्छी तरह से निभाएं। सो एक तरह से देखा जाए तो लर्नर्स अपनी लर्निंग के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है। Then cooperative learning encourages human environment interaction. पहले भी कहा है कि चूंकि एक ग्रुप में 6, 8, 10 बच्चे एक साथ काम करते हैं, सो ह्यूमन इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, और चूंकि बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग में पीयर ग्रुप होता है, सो बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। फिर आता है ट्रेडिशनल लर्निंग इन्वॉल्व्स मेमोराइजेशन स्किल्स। पहले से ये कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसमें रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, पर आजकल की जो टीचिंग है उसमें ये कहा जाता है कि बच्चा रटने के बजाय वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने की क्षमता का विकास उसमें होने लगता है, और कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को वह अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने की क्षमता का विकास कर लेता है। फिर आप देखोगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स, abilities and interests are the focus of cooperative learning. Whereas आप देखोगे कि ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता रहता है और लर्नर्स ने कितना सीखा इस बारे में टीचर्स उतना ध्यान नहीं देते हैं, परंतु आप देखोगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग में छात्रों की आवश्यकता, उनकी एबिलिटीज, उनके शौक या उनके इंटरेस्ट, इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए कोऑपरेटिव लर्निंग आजकल की शिक्षा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन इन अ ट्रेडिशनल लर्निंग सोशल स्किल्स आर एज्यूम्ड एंड इग्नोर्ड। ट्रेडिशनल टीचिंग में जब हम देखते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि छात्रों में सोशल स्किल का विकास हो जाएगा, इस वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर आप देखोगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से जब बच्चा एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीखता है सो सोशल स्किल्स बहुत तेजी से उसमें डेवलप होने लगते हैं। इसी पर हम कुछ और चर्चा करते हैं कि नो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम वर्क इन ट्रेडिशनल लर्निंग। इसका मतलब क्या है, एक दिशाहीन ट्रेडिशनल टीचिंग और लर्निंग में आप देखोगे एक दिशाहीन अंत की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे गोल्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर सिर्फ अपना सिलेबस खत्म करने के लिए ध्यान देता है, परंतु कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर और टॉट दोनों को ही हमेशा
बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग में टीम में बच्चा तेजी से सीखता है। इसलिए जो है कोऑपरेटिव लर्निंग जब टीम वर्क पर ज़्यादा ध्यान देता है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत तेजी से और अच्छी तरीके से होती है। और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव लर्निंग इज डायरेक्टली टॉट, एम्फसाइज्ड एंड असेस्ड थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि छात्रों को ग्रुप में बांटने के बाद कुछ विशेष उद्देश्य के लिए छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और जब तक उस ग्रुप का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब तक हम अगले टीचिंग पॉइंट पर नहीं जाते हैं। सो इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत टाइम टेकिंग होता है, जिसके बारे में हम उसके क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिशनल टीचिंग fail to develop learners critical thinking, problem solving and decision making skills। ऐसा कोऑपरेटिव लर्निंग को जब कक्षा में लगातार यूज किया जाने लगा तब इस बात पर गौर किया गया कि ट्रेडिशनल लर्निंग के माध्यम से छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग विकास नहीं हुआ भावना का, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उनकी उतनी डेवलप नहीं हो पाई। पर जब कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट किया गया तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता का तेजी से विकास होने लगा। और इसके साथ साथ चूंकि छोटे छोटे ग्रुप में हर बच्चा लीडर के रूप में कार्य करता था, इसलिए उनमें डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन मेकिंग स्किल का भी विकास बहुत तेजी से होने लगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि मॉडर्न लर्निंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट एंड देयरफॉर बी मोर प्रोडक्टिव। तो ट्रेडिशनल में हम प्रोडक्टिवनेस पर या स्किल डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, वेयरएज आप देखोगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग में चूंकि स्टूडेंट्स को लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है और वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, सो ये ग्रुप ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल लर्निंग और एक कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच का एक चित्र आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग में टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे पहले एक्सप्लेन किया है, फिर वही चीज जो है उनके हाथ में मशीन देकर छात्र स्वयं लर्न कर रहे हैं, ग्रुप में स्वयं अपने आप की लर्निंग के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। सो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ट्रेडिशनल लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लब करके पढ़ाते हैं, सो कई बार जो है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत तेजी से आप फुलफिल करने की क्षमता का भी विकास कर देते हैं बच्चों में। देन नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव लर्निंग ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, और यही वो 5 एलिमेंट्स हैं जो दूसरे ग्रुप से इसको डिफरेंट करते हैं। When all of these elements are present in a learning situation, the result is a cooperative learning group। पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि छात्र अपने ग्रुप की लर्निंग के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, सो देयर इज अ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। छात्र एक दूसरे के साथ अपनी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, सो देयर इज अ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। देन सेकेंड कम्स द इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। Each and every individual in the group is responsible for their own learning as well as they are accountable to the group also। तो इसका मतलब क्या है, हर बच्चा ग्रुप का उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, क्योंकि वह ग्रुप अकाउंटेबिलिटी में उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। देन फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरैक्शन। जब छात्र एक दूसरे के साथ आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो फेस टू फेस अपनी समस्या का समाधान करते हैं। देन ग्रुप प्रोसेसिंग, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स एंड हाउ दोज बिहेवियर्स इम्पैक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है, जब ग्रुप प्रोसेसिंग, जो ग्रुप डायनेमिक्स होती है, उसमें बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि किस तरह से एक ग्रुप जो है सक्सेसफुल ग्रुप बन सकता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि उसमें जो है
कम्युनिकेशन, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सो जब ग्रुप प्रोसेसिंग होती है तो इस बात पर भी विचार और चर्चा किया जाना चाहिए कि जब हम 6-8 बच्चे एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो वो ग्रुप में किस तरह से बिहेव करते हैं और ईच इंडिविजुअल के बिहेवियर का उनके ग्रुप परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बारे में भी हमको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। सो आप देखोगे कि बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग में जो हम की बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले स्लाइड में हमने ट्रेडिशनल मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है। सो नेचुरली सिंस द टॉपिक इज अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग, वी हैव टू री-एंश्योर दैट हाउ मच यूजफुल इज कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम टीचिंग। सो इसके मुख्य लाभ ये होंगे: इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनहांस्ड क्रिटिकल थिंकिंग, increased academic achievement, positive social interaction, greater engagement, development of teamwork skills, individual accountability, conflict resolutions and self-esteem boost. इन पॉइंट्स को हम पहले के स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परंतु एक समरी के रूप में आपके समक्ष एक स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम बूस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपका आत्म संप्रत्यय जो होता है, जब आप ग्रुप में काम करते हैं और आप अपने अचीवमेंट के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, तो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, जिससे कि आपकी अगली परफॉर्मेंस जो है इसके ऊपर बहुत अधिक डिपेंडेंट होती है। सो इसी में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिटेल में हम इस बारे में बात करते हैं कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट्स एक्टिवली डिस्कस आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स विथ पीयर्स, एनहांसिंग देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटीज। सो जब बच्चा ग्रुप में काम करता है तो एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, और बातचीत में जरूरी नहीं है कि हमेशा लगातार बोला ही जाए। कई बार कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है और कई बार नॉन वर्बल भी होता है। इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल काफी एनहांस होती है। सेकेंड पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट एनहांस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आलोचनात्मक अध्ययन, उसके प्रॉज एंड कॉन्स के, किसी भी बिंदु के क्या फायदे हो सकते हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। छात्र क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को अपने आप में डेवलप कर लेता है बाय वर्किंग टुगेदर टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स डेवलप स्ट्रॉन्गर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो उनकी स्किल्स जो हैं स्ट्रांगली डेवलप हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि जब बच्चा लगातार उस माहौल में काम करता है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी वह डिस्कस करने लगता है, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी तेजी से बढ़ने लगती हैं। देन इंक्रीज एकेडमिक अचीवमेंट। जब बच्चा छोटे ग्रुप में काम करके छोटे छोटे माइन्यूट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यदि वो अनुभव करने लगता है, तो रिसर्च ये इंडिकेट करता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से कई छात्रों में हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल लर्निंग। फिर पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि जब छात्र ग्रुप में काम करता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि मेरा ग्रुप टॉप पर रहे, तो एक पॉजिटिव इंटरैक्शन छात्रों के बीच में होता है, और जिसकी वजह से कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं और स्टूडेंट्स के आपस के बीच में बॉन्डिंग भी बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने ग्रुप के परफॉर्मेंस को बेस्ट रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ ग्रेटर एंगेजमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। सो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स लगातार एक दूसरे के साथ एंगेज होके सेल्फ मोटिवेट होते रहे हैं, और ग्रुप में कोई भी मेंबर थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड होता है, सो दूसरा मेंबर उसको मोटिवेट करके बेसिक ऑब्जेक्टिव की तरह लेकर जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क स्किल, बच्चा छात्र ग्रुप में जब काम करेगा तो डेफिनेटली उसके टीम वर्क स्किल्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे कोलैबोरेट इफेक्टिवली, डेलीगेट टास्क और वर्क टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल। देन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप में काम कर रहे हैं पर हर बच्चा अपनी लर्निंग के लिए स्वयं
जिम्मेदार होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब साथ में काम करते हैं तो आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, परंतु आपके बेसिक उद्देश्य आपके टीम को सबसे टॉप पर रखना है, इसलिए बच्चा वो सोशल स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट के स्किल्स ऑटोमेटिकली सीखने लगता है। देन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, जब क्योंकि उस ग्रुप में विभिन्न एबिलिटी के छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, सो वो उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने लगते हैं और उस रिस्पेक्ट की वजह से जो है एक पॉजिटिविटी जो है ग्रुप में डेवलप हो जाती है। देन सेल्फ एस्टीम बूस्ट, जिसके बारे में पहले ही बताया है कि जब छात्र अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इट रिजल्ट्स इनटू सेल्फ एस्टीम। देन यही चित्र के माध्यम से आपको एक इमेज के माध्यम से बताया गया है कि द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, शेयर्ड आइडियाज, कोलैबोरेशन, डिस्कशन, कम्युनिटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरैक्शन। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी एक जैसे शांत पानी में आप एक पत्थर फेंक देते हैं तो उसमें एक हलचल होने लगती है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि कठिन कॉम्प्लेक्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सीखने के लिए बीच बीच में टीचर या आपके ग्रुप के लीडर भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए एक कठिन सा प्रश्न आपके सामने डाल देते हैं। सो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आपके विचारों का मंथन होने लगता है कि उस समस्या का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। उसमें यही बताया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से आप सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं, जो जिस तरह से आप देखोगे कि लिसनिंग एंड रिस्पेक्टिंग दी others viewpoint also, that is very important in cooperative learning. So conclusion के रूप में आप यही दे सकते हो कि cooperative learning also called collaborative learning. Collaborative learning यानी we work together, we work collaboratively to identify and achieve a single common goal, occurs whenever students interact in pairs or groups to share knowledge, complete assignments एंड अकम्प्लिश गोल्स। सो हर एक ग्रुप का कॉमन गोल होता है, तो जब छात्र एक साथ काम करता है तो उसको आप कोऑपरेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग के नाम से भी जान सकते हैं। पर जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, क्योंकि हर एक बात के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो क्रिटिसिज्म में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। नेचुरली हमारे सिलेबस में इतने सारे यूनिट्स होते हैं, 4-5 यूनिट होते हैं और हम कोऑपरेटिव लर्निंग को क्लास में एक्टिवली हमेशा एक स्टैंडर्ड पैटर्न के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड ओवर डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप पर। देन पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अनइक्वल पार्टिसिपेशन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप में हम कहने के लिए तो कहते हैं कि हर छात्र अपने अचीवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, पर जब आप ग्रुप में काम करने लगते हैं तो हो सकता है कि सभी बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट ना करें और उनके बीच में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें ज्यादा होगी वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए हो सकता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर्स। देन डिफिकल्टी इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। जब एक ग्रुप में 6, 7, 8 बच्चे एक साथ काम करते हैं तो कई बार इस बारे में दिक्कत होती है कि इंडिविजुअल बच्चों के पार्टिसिपेशन को किस तरह से एसेस या इवैल्यूएट किया जाए। देन नीड फॉर सिग्निफिकेंट टीचर प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। सो छात्रों की तरफ से भी इसमें डिफिकल्टी आ सकती है और इसके साथ साथ जब कोऑपरेटिव लर्निंग को टीचर कक्षा में यूज करना चाहता है, सो टीचर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो भी सही तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग को कक्षा में यूज करने के लिए तैयार हों और इसके लिए भी उन्हें विशेष तरह की ट्रेनिंग का दिया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि अनवांटेड डोमिनेशन एंड स्ट्रगल टू एडजस्ट, क्योंकि ग्रुप में 6 से 8 बच्चे होते हैं जिसमें ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होगी, हो सकता है वो थोड़े से कमजोर या सबमिसिव छात्र को ओवर शैडो कर दे और डोमिनेंस उसका हो जाए, तो कई बार जो है स्ट्रगल की स्थिति उसमें बन सकती है। इसके बाद टीचर के लिए भी ऐसे ग्रुप्स को मैनेज करना काफी दिक्कत वाला हो सकता है। तो इसी वजह से जो है बहुत लोग कोऑपरेटिव लर्निंग को
ऑफनली क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल, once a month or once a week, this can be used in a classroom. Then strategies to overcome the disadvantages of cooperative learning. हमने ये देखा कि उसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी कक्षा में अपनाई जाए जिससे कि कोऑपरेटिव लर्निंग की जो दिक्कतें हैं उसको हम दूर कर पाएं। पहले ये है सेटिंग क्लियर ग्रुप नॉर्म्स। हर ग्रुप को क्लियरली ये बता दिया जाए कि आपके ग्रुप के नॉर्म्स कैसे रहेंगे, आपका असेसमेंट किस आधार पर होगा। देन यूज ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। जब टीचर ग्रुपिंग करता है ऐसा ना हो कि 1 to 10 रोल नंबर, देन 11 to 20 रोल नंबर, इस तरह से बच्चों की ग्रुपिंग करने की बजाय यदि बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुपिंग की जाएगी तो हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा ना हो। देन स्ट्रक्चर्ड रोल विद इन द ग्रुप। जब आप ग्रुप के एक एक बच्चे को चुनते हैं तो कुछ बच्चों को उनके स्ट्रक्चर्ड रोल, कौन क्या रोल निभाएगा, इस बारे में टीचर चाहे तो उनको पहले से ही असाइन कर सकता है, जिससे कि उनके बीच में किसी भी तरह का रोल को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। देन ट्रेनिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हम बड़े बड़े भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, और जब आप क्लासरूम टीचिंग में आप एक 15-20 या 25 हायर एजुकेशन की सिचुएशन में भी आप देखो, उन बच्चों से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो इसलिए हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, इसके लिए छात्रों और शिक्षकों दोनों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ उसमें असेसमेंट की जब बात होती है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कई बार प्रोजेक्ट के थ्रू भी करें, कई बार असाइनमेंट के थ्रू करें, और कई बार उनका आप एग्जामिनेशन लेकर भी जो है बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग सक्सेसफुली क्लासरूम में इस्तेमाल किया जाए तो जो ग्रुप मेंबर्स हो रहे हैं उनका चुनाव करते वक्त ध्यान रखें कि उस ग्रुप में विभिन्न कैपेबिलिटीज के छात्रों का सम्मेशन हो। जिस तरह से जितने वैलिड ग्रुप को आप कॉमन गोल की तरफ लेकर आएंगे तब आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग सक्सेसफुल हो सकता है। जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग को कक्षा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण मैनेजमेंट के टिप्स हैं जिसको हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, इफ द ग्रुप इज टू बिग, यूज द talking chip strategy to avoid unwanted talks. Each member will get a limited time to discuss. अनावश्यक लंबी लंबी बात करने की बजाय आप छात्रों को पिन पॉइंट कम शब्दों में अपनी बात को कहने की ट्रेनिंग दीजिए। दूसरा, हर बार बात करने की बजाय उस ग्रुप में विजुअल यानी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरह की टेक्निक्स में छात्रों को एंगेज करने की जो विकास उनमें करना चाहिए। देन यूज विजुअल एड्स एंड प्रॉप्स, क्लैपिंग हैंड्स और यूजिंग जेस्चर्स। हर बार बात करके ही अपनी बात को व्यक्त करने की कोशिश करने की बजाय कोऑपरेटिव लर्निंग को जब आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप विजुअल एड्स को यूज करिए, प्रॉप्स को यूज करिए, क्लैपिंग को यूज करिए, या फिर जो आपके जेस्चर्स होते हैं उसको कक्षा में जब आप यूज करेंगे तो आपके लिए कोऑपरेटिव लर्निंग में काम करना बहुत आसान होगा और उसकी वजह से आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। देन ऑल्टरिंग वॉइस, टोन एंड ब्रीफली स्टॉपिंग स्पीच। ऑल्टरिंग वॉइसेस, पॉजिंग होता है जिसमें, देन वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, फिर कई बार अपनी बात को बीच में रोक देना चाहिए, जो पंक्चुएशंस होते हैं उसका ध्यान रखना, फुल स्टॉप, कॉमा, कहाँ बात को खत्म करना है, किस जगह आपकी आवाज की पिच ऊंची होनी चाहिए, कहाँ नीचे होनी चाहिए। जैसे पोइट्री रेसिटेशन की आप बात कर रहे हैं, सो आप पेट्रियोटिक पोइट्री आप क्लास में रिसाइट कर रहे हैं, सो आपकी पिच किस तरह से होगी, वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरह से होगा, इस बारे में आपको वर्क करना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश। फिर आता है इन्वॉल्व ऑल द मेंबर्स इन द ग्रुप टू डिस्कस एंड मेंटेन अ बैलेंस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स each participation. So teacher has to ensure that all the group members are equally participating in the discussion
or in the group activities. Then a good review is important before creating a cooperative learning group. इसका मतलब क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के पहले, जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बनाते हैं, उसके पहले यदि आप इन सब प्रिकॉशंस को ले लेते हैं, बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का आपने ट्रेनिंग दे दिया, वॉइस मॉड्यूलेशन का दे दिया, ऑडियो विजुअल एड्स कौन से यूज किए जाएंगे, देन नॉन वर्बल क्यूज किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इन सब के बारे में बच्चों को यदि आप ट्रेनिंग दे देते हैं, उसके बाद आप उनकी ग्रुप एक्टिविटीज यदि शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग अपने आप में एक बहुत फायदेमंद टास्क हो सकता है. देन cooperative learning method is used in our real life in many ways. So actual जिंदगी में भी cooperative learning के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे परिवार भी एक तरह से आप देखोगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से ही हम परिवार में रहकर भी बहुत सारी चीजों को सीखते हैं. तो ये स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी एक तरह से देखोगे, परिवार में हम सब जिस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, परिवार के 2, 4, 5 मेंबर्स मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, वही आइडिया जो है एक कोऑपरेटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है. देन इन कंक्लूजन वी कैन टॉक अबाउट विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स society cannot survive, and the society of man has survived because the cooperativeness of its members made survival possible. आप मानव इतिहास को देख लीजिए, मानव के इवोल्यूशन ऑफ इतिहास को देखिए, जितनी भी सिविलाइजेशन का विकास हुआ है उन सब के बारे में आप देख लीजिए. जब तक कि सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं होगा, सर्वाइवल अपने आप में बहुत कठिन होगा. और हमारी प्राचीन इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सोसाइटी के बीच में कोलैबोरेशन था, इसलिए इतनी सक्सेसफुल सोसाइटीज के आज भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. देन इट वाज नॉट एन एडवांटेजियस इंडिविजुअल हियर एंड देयर हु डिड सो, बट द ग्रुप. किसी व्यक्ति ने देश को या समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि समाज ने मिलकर अपने देश, अपने समाज, अपने राज्य, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सो इन ह्यूमन सोसाइटीज द इंडिविजुअल्स हु आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव आर दोज हु आर बेस्ट एनेबल्ड टू डू सो बाय देयर ग्रुप्स. सर्वाइवल के लिए ये कहा गया है कि जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस के साथ जो समाज काम करता है, वही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है, ऐसा कि एशले मॉन्टेग्यू ने 1965 में कहा था. और इस यूनिट को पढ़ने के पश्चात मेरे ख्याल से आप सभी छात्रों में एक एक्वायर्ड नेसेसरी स्किल्स आप में आ गई होगी, जिससे कि किस तरह से हम कोऑपरेटिव लर्निंग में काम कर सकते हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among the group members, respecting each other's views, mutual respect जिसको आप कहते हैं, then mutual interdependency, conflict management और एक good teamwork. How we can be a good team by increasing the tolerance and acceptance of diversity to improve their output. तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप जानते हैं कि ग्रुप में डाइवर्स लोग रहते हैं, सो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक साथ मिलजुल कर एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, तो आप देखिएगा निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. और इसके साथ साथ हम अंत में जो है कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि इस यूनिट में जो हमने पढ़ा है उस पर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. पहला तो क्वेश्चन यही होगा, हाउ डज कोऑपरेटिव लर्निंग बेनिफिट द लर्नर्स, उसके क्या फायदे हो सकते हैं. दूसरा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. पिछली स्लाइड में हमने इन सब के बारे में चर्चा की है, तो आपको बहुत आसान होगा इन प्रश्नों का उत्तर देना. देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग. इसका मतलब क्या है कि ग्रुप लीडर्स बनेंगे, स्मॉल ग्रुप रहेंगे, एक ही क्लास के बच्चे 6 से 8 से 10 से ग्रुप में रहेंगे, परंतु टीचर का रोल फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इट इज द टीचर हु विल डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच ग्रुप. देन हाउ डज कोऑपरेटिव लर्निंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोचेस. सो ट्रेडिशनल अप्रोच और कोऑपरेटिव लर्निंग में मुख्य अंतर क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी स्लाइड्स में चर्चा की है, उसके बारे में आपको इसमें उत्तर देना होगा. और
आखिरी प्रश्न है आपका, डू यू एग्री दैट कोऑपरेटिव लर्निंग इज सूटेबल ओनली फॉर सीनियर क्लासेस? गिव रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग बड़ी कक्षाओं में ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि हाँ, तो उसके लिए आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें। और अंत में कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आप ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस को आप इन लिंक को क्लिक करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।